Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the first chapter of your geography textbook. But before going to geography, we should learn what is geography and why do we need to study geography and what is meant by geography. Okay, so geography is made up of two words, geo and graphy. Geo means earth and graphy means writing. So geography means writing about the earth. Okay, next, whenever we add some new words with geo, then a new word is formed with different meaning. Okay, like geo plus logy, and logy comes from the word logia, which means geology. Okay, logia means something logical. Okay, so geology means study of the earth. Okay, in this we study about a particular landform, and in geography we study about different landforms present on our earth. Okay, but in geology we study about particular landform like coastal areas, mountainous plains, like that particular we study. Okay, next, geo plus metry. Metry comes from the word matria, which means measurement. Okay, so geometry is formed and geometry means measurement of the earth. Okay, here we measure how much area is required, how much area is covered, what is surface area. We measure our earth. Okay, so geometry means measurement of the earth. So these three words are formed with geo, and geo means earth. Okay, so now next come to our chapter. Our chapter name is the earth in the solar system. Okay, where the earth on which we live, we are going to study about it, where it stands in our solar system. Okay, next we are going to study about celestial bodies. First topic is celestial bodies. See, celestial means what? Celestial means heavenly bodies. Okay, this word means celestial means heavenly, and heavenly means something related to God. Okay, in ancient times, whenever people were sad or whenever we are disappointed, we look up at the sky. Okay, and we see the sky is so vast. Okay, so people believe that if there is God, then he is up there in the sky. Okay, so they have named whatever present in the sky were known as heavenly bodies. Okay, something related to God. Heavenly means स्वर्ग से जुड़ा हुआ कुछ ऐसा चीज जो कि स्वर्ग से जुड़ा हो. ठीक है, तो लोगों को ऐसा मानना था पुराने जमाने में कि अगर कहीं पे भगवान है तो वो सिर्फ और सिर्फ आसमान में है, ऊपर में है. ठीक है, तो ऊपर में जितने भी चीज, तमाम चीज जो भी प्रेजेंट है ऊपर में, उनको उन लोगों ने सेलेस्टियल बॉडीज कह दिया. ओके, तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या है? The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. ठीक है, मतलब आपको रात को आसमान में आपको जितने भी चीज दिखते हैं, चाहे वो सन हो, मून हो, ठीक है, वो सब हर तमाम चीज जो कि आपको आसमान में दिखने को मिलते हैं, वो सब क्या है? हमारे सेलेस्टियल बॉडीज. ओके, हेवनली बॉडीज. नेक्स्ट टॉपिक आते हैं. नेक्स्ट, अब हम इस चैप्टर में we are going to study about different type of celestial bodies. Okay, so the first one is stars. Some celestial bodies are very big and hot. Okay, some celestial bodies, कुछ जो bodies हैं बहुत ही बड़े और बहुत ही hot होते हैं. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amounts. Okay, वो किससे बने होते हैं? वो गैसेस से बने होते हैं और उनके पास खुद का हीट और लाइट होता है जो कि वो इमिट करते हैं, छोड़ते हैं. ठीक है, these celestial bodies are called stars. The sun is a star. और इन celestial bodies को हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं. और सन क्या है? हमारा खुद एक स्टार है. ओके, तो कुछ celestial bodies ऐसे थे जिनके पास खुद का हीट और खुद का लाइट होता है जो कोई इमिट करते हैं, छोड़ते हैं. ठीक है, और वैसे बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं. तो हमारा सन क्या है? एक स्टार है. ओके, ना देखिए यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा है, कितने मतलब डायमंड की तरह. They look so beautiful in the night. Okay, and they look like diamonds, but they look very tiny. Okay, now one question arises, why they look so tiny? Okay, so we will see this question. Next, why can't we see the moon and all those bright objects during daytime? अब एक क्वेश्चन आता है कि हम मून या फिर जो भी चीज हम रात को देखते हैं, तारे, मून, स्टार्स, इन सबको हम लोग डे टाइम में क्यों नहीं देख पाते हैं? तो क्यों नहीं देख पाते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see these bright objects of the night sky. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सुबह के समय में, दिन के समय में उनसे भी ब्राइट ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमारे पास सन होता है. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक अंधेरे वाले रूम में छोटे छोटे कैंडल जला दीजिए. ठीक है,
तो उसके बाद कैंडल की रोशनी आपको दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने उस रूम का लाइट ऑन कर दिया तो आपको वो कैंडल की रोशनी दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि उनसे ब्राइट ऑब्जेक्ट आपने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो वैसा ही होता है हमारे मून के साथ। मून या जितने भी स्टार्स हैं जो कि रात के समय चमकते हैं, वो दिन को हमें इसलिए दिखाई देते क्योंकि दिन को उनसे भी ब्राइट ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, हमारा सन होता है। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी moon and all those bright objects during daytime. Okay, now comes the next question. Why does star looks very tiny? Okay, अभी क्वेश्चन आता है कि स्टार इतने छोटे क्यों दिखते हैं, मतलब छोटे से डायमंड की तरह क्यों दिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light and look so tiny because they are very very far from us. Okay, हमारे पास काउंटलेस मतलब अनगिनत तारे हैं, ठीक है, जो कि हमें रात को दिखते हैं। वो सब सन के बराबर है, समझ रहे हैं? जितने भी तारे हैं वो सब सन के बराबर है, लेकिन हम उसको उनके गर्मी को फील नहीं कर सकते, उनके लाइट को देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत 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 दूर है। ठीक है, दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फील देयर हीट और लाइट। ठीक है, ओके। Next, constellation. The various patterns formed by different groups of stars are called constellation. Constellation मतलब क्या होता है? Group of stars. ठीक है, तारों का झुंड। उससे हम क्या कहते हैं? जब एक बहुत ही अलग सा पैटर्न बनता है तारों के झुंड से, तो उससे हम क्या बोलते हैं? constellation. Okay? One of such constellation we are going to study. Ursa Major. Ursa Major और Big Bear is a constellation. ठीक है, एक है constellation जिसका नाम है उर्सा मेजर या फिर उसे बिग बियर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, One of the easily recognizable constellation is the Saptarishi. ठीक है, Sapt means seven and Rishi means six. It's a group of 7 stars that forms a part of Ursa Major constellation. Okay? तो उर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक कॉन्स्टलेशन है। और आपको इजिली रात के समय आपको अगर कोई कॉन्स्टलेशन देखना है इजिली जो कि रिकॉग्नाइजेबल होता है, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि मतलब क्या होता है? 7 ऋषियों का झुंड। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 7 स्टार होंगे, 7 स्टार्स होंगे जो कि एक पैटर्न बनाते हैं। और ये जो सप्तऋषि है ये उर्सा मेजर का एक पार्ट है। ठीक है, उर्सा मेजर का एक छोटा सा पार्ट है ये। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं पोल स्टार। ये भी एक स्टार है। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। पोल स्टार को ही नॉर्थ स्टार कहते हैं और ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है हमेशा, जिसे हम हिंदी में ध्रुव तारा कहते हैं। ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे पोल स्टार भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग का 2 पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ पोल की तरफ है, इसलिए इसको पोल स्टार भी कहते हैं। और ये फिक्स है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। ये हमेशा फिक्स एक ही पोजीशन पे रहेगा, आपको हर दिन ये दिखेगा वहीं पे। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर आप चाहो तो आप रात को खुद भी देख सकते हो। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, हाउ टू लोकेट पोल स्टार। हम पोल स्टार को कैसे दिखा सकते हैं? ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? इफ यू ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन joining the pointer stars and extend it further, it will point to the pole star. ठीक है, अगर आप एक इमेजिनरी लाइन बनाओ, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं फिगर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, ये है हमारा सप्तऋषि, 7 स्टार्स का सप्तऋषि का कॉन्स्टलेशन, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ये सप्तऋषि का कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, तो इसका जो 2 पॉइंटर स्टार है, ओके, दिस 2 पॉइंटर स्टार, if we make an imaginary line from here, imaginary line, okay, you have to draw an imaginary line and extend it further, okay, and then we will get the north star. Okay, so by this we can locate the pole star. Okay student, I hope आप लोग को यहाँ तक आया गया हो। नेक्स्ट, प्लैनेट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? प्लैनेट्स। ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी है जो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने एक सेलेस्टियल बॉडी पढ़ा है, वो था स्टार। अब दूसरा सेलेस्टियल बॉडी पढ़ने वाले हैं, वो है प्लैनेट्स। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. Such bodies are called planets. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि कुछ बॉडीज के पास अपना खुद का हीट और लाइट होता है जो कि वो इमिट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बॉडीज हैं जिनके पास खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, तो वो स्टार की हीट और लाइट से खुद को लिट करते हैं। ओके, जैसे हमारा प्लैनेट है, हमारा जो ऐसे बॉडीज को हम लोग क्या कहते हैं? प्लैनेट कहते हैं। जैसे कि हमारा
खुद का अर्थ, हमारे पास खुद का हीट और लाइट नहीं है, हम सन के हीट और लाइट से खुद को लीड करते हैं, ठीक है। तो वैसे बॉडीज जिनके पास खुद का हीट और लाइट ना हो, जो कि दूसरे के हीट और लाइट को यूज करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है। The word planet comes from the Greek word plantia which means wanderers, ठीक है। ये जो वर्ड है planet, ये आया है ग्रीक वर्ड जिसका जो था plantia, जिसका मतलब होता है wanderers, और wanderers का मतलब होता है घुमक्कर, ठीक है। ये क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ये घुमक्कर होते हैं। The earth on which we live is a planet, और जिस अर्थ में हम रह रहे हैं वो क्या है, प्लैनेट है। और प्लैनेट मतलब क्या होता है, वंडरस, जो कि घूमते यानी कि घुमक्कर है। और ये इस बात सही भी है, द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, वो घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। तो सन इज अ नियरेस्ट स्टार, और सन क्या है, हमारे सबसे नियरेस्ट स्टार है। तभी हम सिर्फ सन के हीट और लाइट को फील कर सकते हैं, क्योंकि सन जितना ही और भी बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन वो हमसे बहुत दूर है। तो सन क्या है, हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। एंड मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, और मून क्या है, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है क्लास। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।